بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں ہربلسٹ پروفیسر ڈاکٹر اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے خواتین کے اندر جو ہے گنج پن کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس ایسی ہوم اور ہربل ریمیڈیز کیا ہیں جس سے خواتین کا یہ گنج پن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان تمام نکات کو، ان تمام وجوہات کو اور ان تمام اقسام کو آپ کے سامنے بیان کروں، میں چاہوں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جو ہے اس کو لائک بھی کیجئے تاکہ آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آتے ہیں ہم ان کی اصل وجوہات کی طرف کہ خواتین کے اندر گنج پن کیوں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو مردوں کے اندر جو گنج پن کی جو وجہ بتائی تھی وہ صرف ایک بڑی وجہ تھی، وہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز، جسے ہم نے DHT کہا، ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز۔ لیکن خواتین کے اندر کوئی ایک وجہ نہیں ابھی تک سمجھ آ سکی، پوری ریسرچ اس کے اوپر ہو چکی ہے۔ جس طرح مردوں کے ہم نے اسپیسیفائی کر لیا کہ DHT ہارمونز کی وجہ سے مردوں کے اندر جو ہے وہ گنج پن ہوتا ہے، خواتین کے اندر ایسی ابھی تک کوئی ایک وجہ بھی نہیں سمجھ آ سکی۔ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کے اندر گنج پن ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ تو ہے جینیٹکس، یعنی وراثت کے اندر۔ اگر کسی بھی لڑکی کی ماں، بہن، نانی اگر ان کے اندر گنج پن ہے تو پھر ان بچیوں کے اندر بھی، جوانی کے اندر بھی ہمیں گنج پن نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جینز جو ہوتے ہیں وہ خواتین لڑکیوں کے اندر ماں باپ کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے اگر باپ کا جو ہے وہ ہارمون جو ایکس جین ہے اس کے اندر بھی اگر جو ہے وہ گنج پن کے جو ہے وہ اگر خصائل ہیں تو پھر یہ بچیاں بھی اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری اس کی بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہارمونز ہوتی ہے، جسے ہم ایسٹروجن ہارمونز کہتے ہیں۔ جوانی کے اندر یعنی جب بلوغت ہوتی ہے اور سن یاس تک یہ ہارمون جو ہے وہ اپنی نارمل لیول پہ رہتا ہے، لیکن بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ خواتین کے اندر بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پایا جاتا ہے، لیکن یہ مردوں کے مقابلے 15 ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے خواتین کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ایسٹروجن ہارمون کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب خواتین جو ہے مینوپاز میں آ جاتی ہیں، یعنی وہ عمر کا حصہ جس میں ان کے ماہواری آنا مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے، اس وقت ایسٹروجن ہارمون انتہائی لو لیول پہ چلا جاتا ہے، کمپیریٹیولی جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس ٹیسٹوسٹیرون کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر سن یاس کے بعد گنج پن ہوتا ہے، لیکن یہ گنج پن ویسا نہیں ہوتا جیسے مردوں میں ہوتا ہے۔ مطلب ان کے بالوں کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، ان کے بال بہت باریک ہو جاتے ہیں، اور ان کی جلد جو ہے وہ ویزیبل ہوتی ہے، یعنی سر کے نیچے جلد نظر آتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے یہاں سے کافی سارے بال اڑ گئے ہیں، لیکن مردوں کے تو یہ چٹیل میدان کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 20% خواتین کے اندر جو ہے وہ گنج پن، جب بال اترنا اور بال جھڑنا جو ہے وہ صرف ٹیمپل، یعنی یہاں پر ہم سے کہہ سکتے ہیں کنپٹیاں جسے ہم کہتے ہیں، یہاں پر ہوتا ہے، مگر 80% خواتین کے اندر جو گنج پن ہوتا ہے وہ پورے ڈوم آف دا ہیڈ جو ہے، اسکالپ جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہاں سے بال گرتے ہیں، لیکن ان کے بیک سائڈ پہ کبھی بھی نہیں ہوگا، وہاں پر بال اسی طرح ہی گھنے ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ لیکن اب اسی ایسٹروجن ہارمونز کی بات ہم کریں، اگر یہ ایسٹروجن جوانی کے اندر سن بلوغت کی جو عمر ہے، یعنی 30 ہے، 15 کے بعد شروع ہو جاتا ہے 30 سال تک، یعنی ابھی خواتین جو ہیں ان کا بریڈنگ فیز چل رہا ہوتا ہے، ان کے مینسز بالکل ریگولر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی مینسز کی کمی کی وجہ سے خواتین کے اندر جو ہے وہ گنج پن ہو سکتا ہے۔ اور میں نے ایسی 20 سال کی لڑکیوں کے اندر بھی دیکھا ہے کہ ان کے اندر فیمیل پیٹرن جو ہے بالڈنس میں نے دیکھی ہے ان کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم تیسری اس کی جو بڑی وجہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے ان کے PCOS یعنی پولیسسٹک اووریز، اور PCOD پولیسسٹک اوورین سینڈروم پرابلم۔
एमेनोरिया, मेंसेस का बंद हो जाना, इसकी बड़ी वजह ये होती है कि इससे ख़वातीन का एस्ट्रोजन हार्मोन जो लेवल है वो बहुत गिर जाता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे, उनकी मूँछों पे, उनके जिस्म पे हत्ता कि बाल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब चेहरे पे बाल आते हैं तो कंपैरेटिवली उनके सर के ऊपर बाल जो है वो कम होते चले जाते हैं और ख़वातीन के जो है वो पैटर्न गंजपन का है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात भी 100% ठीक है कि जिन ख़वातीन के अंदर गंजपन पाया गया या उनके चेहरे पे बाल पाए गए, जब उनके एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल को चेक करवा तो दोनों ठीक थे। 99% ख़वातीन के अंदर ये दोनों टेस्ट नॉर्मल होते हैं। तो इसलिए हमें इनके बाकी वजूहात को भी देखना पड़ेगा। और क्या वजूहात हो सकती हैं? इनमें विटामिन्स की कमी होती है, विटामिन डी की कमी हो जाने से भी बाल कमज़ोर होते हैं, गिर जाते हैं और बालों की मिकदार सर पे कम होकर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हमें नज़र आती है। विटामिन B12 की कमी, उससे भी ऐसा होता है। लेकिन पाकिस्तानी ख़वातीन में ख़ास तौर पर बाल कमज़ोर होना और उनमें गंजपन पैदा होने की बहुत बड़ी वजह आयरन और फेरेटिन लेवल का खून में कम होना है। अब जब ये कम होता है तो अल्टीमेटली बालों को वो न्यूट्रिएंट्स, वो ग़िज़ाई अज्जा नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से बाल पहले बारीक होती हैं और फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इस वजह को देखना पड़ेगा, इसकी वजह क्या थी जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर जब गंजपन हुआ। हम कोई एक वजह स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। जैसा मर्दों के अंदर हमने कहा कि DHT हार्मोन की ज़्यादती जो मर्दों के अंदर जो है वो गंजपन की वजह थी, औरतों के अंदर ऐसी एक वजह को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसकी आखिरी वजह मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाना। जो ख़वातीन जो लड़के जवानी की उम्र के अंदर बहुत मोटी हो जाती हैं, उसकी वजह से भी इनमें गंजपन आ सकता है। और सबसे अहम वजह जो है, अगर किसी खातून जो है उसका जिगर जो है वो सही तौर पे काम ना कर रहा हो, तो फिर ये जिगर ही वो ऐसा बड़ा जो आपके ऑर्गन है, यानी अगर ये इसके एंजाइम्स पूरे सही ना आ रहे हों, ये सही काम ना कर रहा हो, तो फिर ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसको किसी भी तरह जो है बाकी हार्मोन्स में कन्वर्ट नहीं करता। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, हत्ता कि इसके एक फंक्शन ये भी है कि आपके थायराइड जो ग्लैंड है, जिसे हम यहाँ पर जो गदूद होता है जिसे हम थायराइड कहते हैं, उसके हार्मोन्स को T3 और T4 में कन्वर्ट करना होता है। अगर जिगर किसी खराबी की वजह से ना कर रहा हो तो उसकी वजह से भी ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ख़वातीन में ख़ास पर जो TSH हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके नतीजे के तौर पर भी इनके अंदर गंजपन होगा। और वो ख़वातीन जिनमें थायराइड का प्रॉब्लम है, और जब तक उसको ठीक ना किया जाए इनका गंजपन भी ठीक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये सारी बातें करने का मकसद ये है, जब तक हमें मर्ज़ का इल्म नहीं होगा कि ख़वातीन में गंजपन होने का असल वजह क्या है, असल रीज़न क्या है, असल उसकी बीमारी क्यों हुई उसको, तो तब तक हम इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। जैसे ही इस तरह के ख़वातीन आपके पास आती हैं गंजपन के लिए, या वो ख़वातीन जिनको गंजपन का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसे उन्हें इल्म होना चाहिए कि इस गंजपन की क्या वजह, क्या वो विरासत या जेनेटिक्स से, क्या वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाने, क्या वो मेनोपॉज की वजह से हो रहा, क्या वो विटामिन D और B12 की कमी की वजह से था, क्या वो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से यानी थायराइड का फंक्शन ख़राब होने से हुआ था, या उनका लीवर और गॉल ब्लैडर के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होने से हुआ था, या बहुत ज़्यादा मोटापा उसकी वजह थी, क्या PCOS, PCOD या एमेनोरिया बंदिश हैज़ तो उसका वजह नहीं थी। तो दोस्तों, जब तक इसकी असल वजह को आप नहीं समझेंगे, आप इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। हाँ, अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। हर्बल ट्रीटमेंट इसके बारे में क्या है? तो ये तो मैं बता दूं कि ख़वातीन के अंदर जो एलोपैथी में जो है हेयर ट्रांसप्लांट सबसे नाकाम तरीन हुआ है, क्योंकि उससे बजाय ख़वातीन के गंजपन को ठीक होने का और ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हर्बल के अंदर ऐसा बहुत ही सेफ सा तरीका है जो उसकी असल वजह को ठीक करते हैं। जैसे ख़वातीन में खून की कमी आ गई, हम उसे कहते हैं आंवले का इस्तेमाल कीजिए। अगर उनके अंदर PCOS है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो मेरी इसके ऊपर पहली वीडियोस मौजूद हैं, आप उसे चेक कीजिएगा। आपको 100% इसका इलाज मिलेगा कि जैसे PCOS क्लियर होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका सर के गंजपन जो है वो ठीक हो जाता है।
बहुत बड़ी वजह एमनोरिया, मेंसेस का जो बंद हो जाना, हार्मोन्स की खराबी की वजह से। तो बंदिश हैज़ के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसे देखिएगा, इंशाल्लाह ख़वातीन का ये मसला हल हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और फिर आपको ये बता दूं कि जो दवा आप खा नहीं सकते वो दवा आपको सर पे लगानी भी नहीं चाहिए। खा क्यों नहीं सकते? उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। तो भाई जिसके खाने के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसके लगाने के भी साइड इफेक्ट्स होंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ हर्बल के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे मैंने पीछे इसकी बहुत सारी वजूहात बताई, इनमें से एक बड़ी वजह स्ट्रेस भी होती है। वो ख़वातीन जो स्ट्रेस का शिकार होती हैं उनके सर के बाल हमेशा पतले हो जाते हैं, उसका वॉल्यूम, उसका जो घनापन है वो ख़त्म हो जाता है, वो पतले हो जाते हैं और उसी से जल्द की जो है सर की जल्द उनको नज़र आना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए एलोपैथी की तरह तिब के अंदर कोई नींद आवर अद्वियात नहीं है, कोई नशा आवर अद्वियात नहीं है। तिब के लिए एक बेहतरीन आपको एक दवा मैं बताता हूँ जो आपके दिमाग को इतने कव्वी कर देगी, ये स्ट्रेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ये अनवांटेड जो स्ट्रेस आपके दिमाग पे बार बार आ रही है और आप उसे दिमाग से निकालना चाहते हैं, आपका दिमाग कमज़ोर है और उसका मुकाबला नहीं कर रहा, तो देखिए तिब का कमाल। तिब में एक वहद हर्ब है जिसे हम बरहमी बूटी कहते हैं। ये बरहमी बूटी में अल्लाह ने ये ख़वास रखे हैं कि आपके दिमाग को कुव्वत देता है और आपको स्ट्रेस से निजात दिलाता है और आप अपने स्ट्रेस पे होल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जब आपके दिमाग इस काबिल हो जाए कि वो स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें तो लाजमी तौर पर आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आपका गंजपन भी ठीक हो जाएगा। दूसरी आप हमारे हर्ब जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि जिगर के फेल का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, हार्मोन्स का लेवल जो है ना ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तिब के अंदर एक और जड़ी बूटी का मैं आपको बताऊं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चाहे उसे खाएं, चाहे उसे लगाएं, लेप की सूरत में लगा लें, चाहे उसे ऑयल की शक्ल में बना के इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। वो है भंगरा सफ़ेद। ये आम तौर पर पाकिस्तान में काफ़ी हर जगह पाया जाता है जहाँ पर नमनाक सी जगह होती है। ये आमतौर जौहड़ों के किनारे पे पाया जाता है, नदियों के किनारे पे पाया जाता है, या वो जगह जहाँ पे थोड़ी सी नमी होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। इसके पिक में मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको यानी भांगरा को भी खुशक कर लीजिए और बरहमी बूटी जो है उसको भी खुशक कर लीजिए। 600 ग्राम भांगरा, 600 मिलीग्राम, नॉट सॉरी ग्राम, 600 मिलीग्राम भांगरा और 400 मिलीग्राम जो है वो बरहमी बूटी का सफ़ूफ, इस रेशो से आप मिला के रख लीजिए और इसको 500 mg वाले 2 कैप्सूल या 1000 mg वाला 1 कैप्सूल या सिर्फ 1 ग्राम पाउडर की सूरत में सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपके जिगर को बिल्कुल ठीक करेगा, उसको टोन अप करेगा, उसके एंजाइम्स को बेहतर करेगा। उसके नतीजे के तौर पे वो जो कन्वर्शंस ऑफ द हार्मोन्स थी जो जिगर ने करनी थी वो प्रॉपर तौर पे करना शुरू कर देगा। इस तरह ख़वातीन के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जब नॉर्मल लेवल पे रहेगा, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल पे आएगा, वो बढ़ेगा नहीं, जिसकी वजह से गंजपन की शिकायत हो सकती है। अगर इसको लगाना चाहते हैं तो ताज़ी जड़ी बूटियाँ ले लीजिए, दोनों भांगरा और बरहमी, उसको पेस्ट बनाइए और सर पे लगा लीजिए। हफ्ते में 3 दफ़ा लगाइए, लेकिन बालों की जड़ों के अंदर लगाइएगा। और अगर आयल बनाना चाहते हैं तो भांगरा का आयल बेहतरीन आयल है गंजपान का, ख़वातीन हों या मर्द हों दोनों के लिए, क्योंकि ये ऐसी हर्ब है जो आपके बालों की जड़ों को, फोलिकल्स को, ये उसकी सोजिश को उतारती है, उसको वो न्यूट्रिएंट्स देती है जिसकी वजह से बाल हेल्दी होते हैं, चमकदार होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं और आपका ग्रे हेयर यानी बाल सफ़ेद होने का जो प्रॉब्लम है वो भी इस हर्ब के आयल से क्लियर हो सकता है। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बालों के जड़ों में रात को लगा लीजिए और सुबह आप उसे वॉश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि देखिए बाल जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ उग रहे हैं, बाहर से अंदर नहीं आ रहे। तो मतलब ये है कि प्रॉब्लम भी इंसान के जिस्म के अपने अंदर है। जब तक अंदरूनी प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी जो एलोपैथिक अद्वियात सरों पे लगाते भी रहें या लेप करते रहें या ऑयल वगैरह के इस्तेमाल करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कभी गंजपन ठीक नहीं होता। अंदर क्या खराबी है मैंने बड़ी वजह से आपको बता दिया था। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है,
جینیٹکس پرابلمس یعنی وراثت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وٹامنس کی کمی کی وجہ خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اصل وجہ کو ٹھیک کیجیے، مرض جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، مرض دبتا نہیں بلکہ مستقل طور پہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ کمال ہے طب یونانی کا، یہ کمال ہے نظر مفرد اعضاء کا کہ آپ کو روٹ کاز کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بتاتا ہے اور ایسی سیف ریمیڈیز آپ کو دیتا ہے، ایسی بے ضرر جڑی بوٹیاں آپ کو بتاتا ہے جو آپ کے روٹ کاز کو، اصل وجہ کو آپ کے جسم سے ختم کر دیتا ہے، تو یہ مرض پھر مستقل طور پر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ہربلسٹ پروفیسر ڈاکٹر اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔